Hello students, myself Rakesh Misra. I hope related to heredity chapter your practice is very good nowadays, and I hope most of your concept regarding the lesson of heredity and evolution is clear. Since past 7 video of heredity and evolution, you are studying related to MCQs, fill in the blanks, true, false, assertion, regions, and many more concept basis question that may probably 1 marks question. But from this video onward, you will learn the very short answer type question, short answer type question, long answer type question. This is not a self-made question. The all question and their collection which you will get practiced from this video onward is taken out from the 10-year important question, that is 10-year previous year board questions. So you should focus on the video till the ends, because each and every question is important for you, which may probably ask in upcoming examination. As I promise you that I will bring the short answer, long answer type question related to heredity and evolution chapter, that need to identify whatever the heredity concept and whatever the evolution concept. As you all know, due to corona pandemics, we have very short duration to revise the all question and complete the overall syllabus. That's why CBSE reduced overall 33% lesson from the overall syllabus from each and every subjects. In order to them, you have lost the control and coordination, natural resource, and many more concepts. But you need to focus on this chapter. From this chapter, the portion of evolution is no more, so you should try to understand whatever the concept of evolution and eliminate them. Many students ask me the question of this lesson that are actually related to the evolution chapter. So in this video lecture and this video onward, you have learned the which type of question is related to evolution and which type of question is related to heredity. That's why here a lot of practice and here a lot of videos related to the single type of lesson I have bring you, that you are able to identify the heredity and evolution chapter. So the topic of heredity is no more, so you don't need to practice more and lose your effort with the evolution. You should practice with the heredity only. In order to overcome that problems, here I have a lot of series of question that may probably ask in upcoming examination, because it was asked in past 10 years. So in this series you will learn the very short answer and long answer type question that may probably 1 marks, 2 marks, or 5 marks, 3 marks. Also the 5 marks questions will include in this video lecture. So from this video, from nowadays onward, you will learn the long answer type question, and I hope your practice with the long answer type question will as usual as with the short and MCQs type question. So be with the video lecture, and I hope you have a pen paper in order to note down the important concepts and the answer, probable answer for the particular questions. So be with the video till ends and write the question, then the answer that I have explained with the question along with the video lecture. Now back to question number 1 of the 10 years important question. You don't miss the any kinds of video from this, because this may harms either your 5 marks, 3 marks, 2 marks. If you have lost the previous concept basis question, that may probably last the 1 marks question for each and every question. But if you have lost the 5 marks question, that probably your result will get affected. So your practice with the 5 marks question will be as usual as you have the MCQ or true false type question. Now without delay timing, let back over the question and revise them thoroughly. Now the question number 1. Listen carefully. The question number 1 is the theoretical question from previous year board, as you have seen in your overview screen. Chapter 5, it is all about matter of heredity and evolution. It is all about for class 10th students. The first question is, what is gene? It was asked in the Delhi and properly may ask in your examination. So genes may be defined as the hereditary units. It may be defined as the hereditary units that possess
specific characteristics of living body. So the genes may be defined as the hereditary units that possess specific characteristics of living body. It may also defined as the segments of DNA, the segments of DNA. Genes may also defined as the segments of DNA. और बाकी चीज़ें ऐसे ही लिखेंगे, that possess specific characteristics of living being. यहाँ से डिफिनीशन आप यहाँ से पिक करेंगे तो यहाँ से चीज़ें कॉमन होंगी, चाहे कोई भी डिफिनीशन हो, ठीक है. ये अनकॉमन होगी. हेरिडिटरी यूनिट्स, जीन्स हेरिडिटरी यूनिट्स ये होता है. और जीन्स की डिस्कवरी किसने किया था? जीन्स वॉज डिस्कवर्ड बाई ग्रेगर जॉन मेंडल. ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे. लेकिन मेंडल ने नाम फैक्टर बोला था, मेंडल जीन नहीं बोले थे. क्या बोले थे? फैक्टर. बाद में जॉनसन नाम के साइंटिस्ट ने, किसने? जॉनसन ने ये इसको जीन टर्म दिया. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो जीन से रिलेटेड है. अगर ऐसा सिर्फ यही पूछता है तो ये 1 मार्क्स में होगा. क्लियर है ना? आई होप जीन्स को आप अच्छे से लिख लेंगे, समझ जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सेक्स क्रोमोसोम्स. तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? क्रोमोसोम ऐसे लिखेंगे, लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम, लास्ट पेयर ऑफ chromosomes of human which decide the gender of individual. Which decide the gender of individual, called sex chromosome. The last pair of chromosomes of human being which decide the gender of individual, called sex chromosomes. For male, it often assigned as XY. For male, it often assigned for male, it often assigned for XY, and for female it assigned as the XX. Keep in mind, I hope your concept regarding the sex chromosomes is clear. अगर ऐसे डायरेक्ट पूछता है तो ये भी 1 मार्क्स में होगा. इसमें भी एग्जाम्पल लिखने हैं, ठीक है. क्वेश्चन कॉपी में सब लोग लिखेंगे, साथ ही आंसर जो मैं लिख दे रहा हूँ उसको बोल भी रहा हूँ. अगर नीचे जो लिख रहा हूँ, चूँकि स्क्रीन पे लिखना आसान नहीं होता है, ठीक है, तो आप जो मैं लिख रहा हूँ उसको आप लोग लिखिए और साथ में जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लोग सुनिए और उसके अकॉर्डिंग भी आप लिख सकते हैं, ठीक है. आगे 1 मार्क्स 2 मार्क्स इस तरह से आप लिखने की ज़रूरत नहीं. बस ये समझिए कि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 1 साल फॉरेन लिख दिया जिसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ फॉरेन में पूछा है, ऐसा नहीं. ये हर जगह पूछा है. अब यहाँ पे मैं ईयर भरते चलूँ कि कब कब पूछा तो ये पूरा उसी से भर जाएगा. क्लियर है ना? यहाँ पे भी ईयर नहीं भरा, यहाँ पे भी ईयर नहीं भरा. तो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए चाहे कहीं भी हो, इसमें हमको फोकस ये करना है कि आंसर उसका क्या होगा और क्वेश्चन किस ढंग से पूछता है, ठीक है. तो जीन्स आप लर्न कर लेंगे, क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स आप लर्न कर लेंगे. ऑटोसोम भी होता है. सो फर्स्ट पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम दैट्स रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म अ बॉडी इज नोन एज ऑटोसोम्स. फॉर ह्यूमन बीइंग इट इज़ 44 इन नंबर फॉर मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली, ठीक है. नेक्स्ट क्रोमोसोम, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, द सेक्स ऑफ चिल्ड्रेन इज डिटर्मिन बाई व्हाट दे इनहेरिटेड फ्रॉम देयर फादर्स एंड नॉट देयर मदर. जस्टिफाई. कह रहा है कि एक चाइल्ड है, ठीक है, ये मेल है या फिर फीमेल, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है,
ठीक है। इसको डिसाइड फादर करता है या इसको डिसाइड फादर करता है, मदर डिसाइड नहीं करता है। इसको जस्टिफाई करेंगे तो इसको लिखेंगे कैसे, आंसर डालेंगे कॉपी में और आंसर में लिखेंगे, मैं बोल रहा हूँ लिख लीजिए आप, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, लिख भी दे रहा हूँ, घबराइए मत, एज वी नो दैट द मेल human form two types of chromosome, two types of chromosomes in male form two types of gametes होगा, सॉरी, two types of gametes, two types of gametes, ठीक है, two types of gametes, the gametes having, gametes means मेल gametes को क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, स्पर्म्स, gametes having और स्पर्म हैविंग, पूरा लिखना है, एक्स क्रोमोसोम एंड स्पर्म हैविंग वाई क्रोमोसोम, एरो की जगह पे हैविंग लिख देना, वाइल फीमेल फॉर्म ओनली ऑन टाइप ऑफ, ओनली one type of gametes, और फीमेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं, ओवम, प्लूरल ओवा, क्लियर है ना, दैट इज एक्स। अब आगे क्या क्या लिखना है मैं बता दे रहा हूँ, एज द स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम फ्यूज विद द एनी ओवम देन देयर विल बी पॉसिबिलिटी ऑफ गर्ल चाइल्ड, as the sperm containing Y chromosomes fuse with the X, there will be possibility of boys. It means the girl's child or boy, the girl's or boy child is due to the specific interaction of male gametes only. It is decided by male gametes only. और ये बातें लिख देना, as we know that male gametes, male human form two types of gametes, that is sperm, the sperm containing X chromosomes, sperm containing Y chromosomes, while female form only one type of gametes in ovum, that is X chromosomes, only one types of ovum, that is ovum containing X chromosomes, so that the girl or boy depend upon the situation in which type of sperm fuse with the egg cells. If the sperm containing Y chromosomes fuse with the egg cells, there will be the boys. If the sperm containing X chromosomes fuse with the egg cells, there will be girls. और इसके बाद ये वाला डायग्राम आप सब लोग बना लेंगे, ठीक है, ये वाला आप जानते हो कि इसमें आप लिख लीजिएगा मेल और फादर लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिख दीजिएगा फीमेल, ठीक है, मदर लिख सकते हैं, और इसके बाद इसके ऑटोसोम को असाइन कर दीजिएगा 44 प्लस XY, और इसके लिए असाइन करेंगे 44 प्लस XX। अब इससे क्या बनेगा, इससे गैमीट्स बनेगा, तो गैमीट्स बनाएंगे 22 प्लस X एंड 22 प्लस Y, और इससे क्या बनाएंगे, इससे गैमेट्स बनेगा 22 प्लस X टाइप ओनली, सिर्फ एक ही टाइप का बनेगा, ठीक है, प्लस 22 प्लस वो भी X ही टाइप रहेगा। अब क्या होगा, क्रॉस होगा, ठीक है, क्रॉस करवाएंगे, ये अगर क्रॉस करेगा इससे, यानी कि स्पर्म कंटेनिंग X क्रोमोसोम्स अगर किसी भी एग सेल से, चाहे इससे करे या इससे करे, ठीक है, रिजल्ट सेम आएगा, तो क्या आएगा 44 प्लस XX, और इसका रिजल्ट क्या होगा, फीमेल
ये क्या होगा, फीमेल। इफ स्पर्म कंटेनिंग वाई क्रोमोसोम्स फ्यूज विथ एनी काइंड्स ऑफ एग, चाहे इससे फ्यूज करे चाहे इससे फ्यूज करे, ठीक है, देयर विल बी 44 प्लस एक्स वाई एंड इट विल become boy, it will become boy. It means for girls or boys, for girls or boys there is role of the male gametes. If male gametes fuse with the egg cell, then there will be, if male gametes containing X chromosomes fuse with the egg cells, there will be female. If male gametes containing Y chromosomes fuse with the egg cells, there will be undoubtedly boy. So overall male play important role. Which kinds of sperm will fuse with the egg? It will be the result of either the female or either the male. If female, there will be the girl side having the XX chromosomes at the last sex chromosomes, and the male having XY type chromosomes as the last XY, and it will become boy. आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ में आ गया होगा, इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, आप उस आंसर को लिखने के बाद इसको लिखेंगे, ठीक है। वीडियो को बैक करके आप जो आंसर लिखे तो उसको लिखने के बाद इसको ड्रॉ करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ यही डायग्राम ड्रॉ कर देंगे तो आपको बाकी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। सिर्फ यही ड्रॉ कर देंगे, टाइम कम रहेगा तो सिर्फ यही ड्रॉ कर देंगे, बाकी चीज़ें आपको पढ़ने लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, वेरिएशन इन रिलेशन टू स्पीसीज, वेरिएशन इन रिलेशन टू स्पीसीज, डिफाइन वेरिएशन इन रिलेशन टू स्पीसीज। अब आगे क्वेश्चन पूछ रहा है वाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू स्पीसीज, ठीक है। अब यहाँ पे वेरिएशन को डिफाइन करना है तो लिख लो कॉपी में इसका वेरिएशन का डेफिनेशन। इट इज वेरिएशन में बी डिफाइंड एज degree of phenotypic changes in offspring, degree of phenotypic changes in offspring in which offspring looks differently than the parents. So how can you define the variation? Variation may be defined as the degree of phenotypic changes, degree of phenotypic changes in which offspring in which offspring looks differently than the parents, ठीक है। तो उसको बोलेंगे वेरिएशन। स्पीसीज के केस में व्हेन द स्पीसीज आर डिफर फ्रॉम द पेरेंट्स देयर विल बी वेरिएशन। ये सिंपल सा डिफिनीशन है, ठीक है। वेरिएशन में बी डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ phenotypic changes among the offspring that is different from the parents। तो ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। अब आगे क्वेश्चन पूछ रहा है वाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू स्पीसीज, इसको डिफाइन कर दे रहा है। लिसन, पहले समझ लो। मान लो कि पोलर बियर है, पोलर बियर, ठीक है। और ये पोलर बियर दिखने में कैसा है, इसका हेयर जो है बिग है, हेयर क्या है, बड़ा बड़ा है, ठीक है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि विंटर के लिए अडॉप्टेड है, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये विंटर के लिए अडॉप्टेड है। लेकिन अगर टेम्परेचर राइज हो गया, सपोज दैट टेम्परेचर क्या हो गया, राइज, बढ़ गया, और वो कभी घटा ही ना, तो पोलर बियर के बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेज होगा कि इसका हेयर जो है लॉस हो जाएगा। हेयर या तो शॉर्ट हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। साथ साथ इसके अंदर जो फैट का लेयर वो भी थोड़ा सा डिकम्पोज हो जाएगा। तो ये जो दूसरा वाला पोलर बियर है, पोलर बियर 2 इसको लिख दे रहे हैं, ये अपने पेरेंट्स की तरह से नहीं दिखेगा। पेरेंट्स की तरह से नहीं दिखना ही क्या बोलते हैं उसको, वेरिएशन। सो वेरिएशन आर डिफाइंड एज, वेरिएशन में भी डिफाइंड एज द चेंजेस इन फिनोटाइप सो दैट द ऑफस्प्रिंग लुक डिफरेंटली फ्रॉम द पेरेंट्स।
अब ये पूछ रहा है वाई इट इज़ बेनिफिशियल टू द स्पीसीज, तो लिखेंगे इट इज़ बेनिफिशियल टू स्पीसीज बिकॉज ऑफ हैविंग एडॉप्टेशन। अब ये अगर बेनिफिशियल, अब यहाँ वेरिएशन नहीं होता तो ये मर जाता है, क्योंकि इसका हेयर अगर कंटिन्यूस रहता तो गर्मी के मारे मर जाता है, ठीक है ना। तो वेरिएशन आर यूजफुल फॉर द पर्टिकुलर स्पीसीज फॉर एडॉप्टेशन फॉर सर्वाइवल ऑफ द लिविंग बीइंग। सो मैनी वे यू कैन डिफाइन द वेरिएशन। क्लियर है ना। तो वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इम्पोर्टेंट पॉजिटिव केस में पार्टिकुलर स्पीसीज के लिए इम्पोर्टेंट है। कभी कभी ये पूछता है कि इंडिविजुअल के लिए ये अननेसेसरी भी होता है। अननेसेसरी अगर पूछ दे इंडिविजुअल के लिए तो क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। कभी कभी होता है कि मान लो कि कोई बियर है, ठीक है, और उसकी बाल बड़े बड़े नहीं, जनरल बियर है, हमारे लोकल एरिया के बियर है, उसके बाल नॉर्मल है, लेकिन अगर ठंडी पड़ने लगे तो यही धीरे धीरे बाल बड़े हो जाएंगे, तो ये पुरानी स्पीसीज से डिफरेंट दिखने लगेगा, यानी ये नई स्पीसीज बन गया। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं पुरानी स्पीसीज जो छोटे बाल वाली थी वो ख़त्म हो गई। तो टाइम टू टाइम वेरिएशन होना भी ज़रूरी है, लेकिन इंडिविजुअल स्पीसीज के लिए होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल स्पीसीज में रेसेस के लॉस होने का खतरा रहता है। ये स्पीसीज हम बोलेंगे बाल वाली स्पीसीज पहले होती थी, या बाल वाली स्पीसीज पहले नहीं होती थी, अब बाल वाली स्पीसीज आ गई है, ठीक है। तो ये अपने हिसाब से, जैसे अगर कोई मांसाहारी बंदर को खोजोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको पता है कि जितने भी ऐप्स थे वो बीच में रॉ मटेरियल, रॉ फ्लैश वगैरह वो खाते थे, लेकिन वो उनका एडॉप्टेशन था। धीरे धीरे वो जो है पूरी तरह से हर्बीवर्स हो गए, ऑमनीवर्स भी हो गए, ठीक है, कुछ कॉर्नीवर्स ही रह गए। तो एडॉप्टेशन टाइम टू टाइम होता रहता है, उसके लिए वेरिएशन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इसमें हम 1 to 4 को ही रिवाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड हम रिवाइज करेंगे। चूँकि ये शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होता है, इसलिए इसमें टाइम टेकिंग होता है, 1 से 2 या 2 से 4 क्वेश्चन ही हम लोग रिवाइज कर पाते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको फोकस आउट करने हैं कि हमने क्या रिवाइज कर लिया है, क्या लेफ्ट कर दिया है, कैसे लिखना है। क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद जो मैं बोला उस हिसाब से उसका आंसर लिखेंगे, और साथ में सारे क्वेश्चन को टच करते हुए मार्किंग को भी ध्यान रखेंगे। ये अगर एग्जाम में पूछेगा तो ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं इसके लिए। ये ऊपर वाला भी 3 मार्क्स का था, ये भी 3 मार्क्स का बनता है, ठीक है। अब कॉपी में लिख लेंगे, आगे 3 मार्क्स लिखेंगे तो आपको पढ़ने में थोड़ी सी सहूलियत मिलेगी और पढ़ने में मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड आपको रिवाइज कराते रहेंगे। थैंक यू।